Hey viewers, you're watching Da Savera and I'm Vidhi Joshi. Punjab DGP Gaurav Yadav held a press conference regarding the murder of Aam Aadmi Party Sarpanch Jarmal Singh in Amritsar, Punjab. The DGP announced that 7 arrests have been made in connection with the case. And of these, 2 arrests were made in Raipur, 2 in Mohali and 3 in Tarantaran. DGP Yadav stated that Sukhraj Singh, a resident of Tarantaran, and Karamjeet Singh, a resident of Gurdaspur, who were arrested in Raipur, were the shooters responsible for the Sarpanch's murder. 2 other accused, including Jobanjeet Singh, were also taken into custody, and on Monday morning, that is today, the police arrested 3 more individuals, Kulvinder Singh, Armandeep Singh and Hardeep Singh. One of the accused was produced before a local court in Chhattisgarh and placed on a 14-day transit remand. He is being brought to Punjab by air, and the DGP further stated that the murder was orchestrated by a handler based abroad and that gangster, Prabh Dasuwal, who had a personal rivalry with Sarpanch Jarmal Singh, was involved in planning the attack. He emphasized that anyone firing a bullet in Punjab will not be spared, whether they are within the nation or abroad. Sarpanch Jarmal Singh, a resident of Tarantaran area, was murdered on January 4th while he was in Amritsar to attend a wedding. Following the incident, the 2 shooters fled to Chhattisgarh and were hiding at a relative's home in Raipur. Both the shooters were apprehended on Sunday by a joint operation of the Raipur and Punjab police. Now let's listen to what DGP Gaurav Yadav has to say on this matter. दो गिरफ्तारियां मोहाली में 3 गिरफ्तारियां तरनतारन को सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ इसमें काफी टेक्निकल मीन्स इसकी फॉलो की गई है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंट मॉड्यूल्स ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈਂਡਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ मॉड्यूल लॉजिस्टिकल सपोर्ट वेपन्स व्हीकल्स प्रोवाइड करने वाला मॉड्यूल शेल्टर प्रोवाइड करने वाला मॉड्यूल ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ एजीटीएफ पंजाब पुलिस की सारी यूनिट्स ने मिल के एक सीसीटीवी ट्रायल को साइंटिफिकली प्लान किया गया ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਸ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਮਿਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕ ਬੇਸਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਅਕਿਊਜ਼ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗੰਗਾ ਆਰੋ ਠੱਕਰਪੁਰਾ ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਅਕਿਊਜ਼ ਇਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰੋ ਵਿਲੇਜ ਪਾਸਨਵਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਈ 에ਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵੈਪਨਸ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋਬਨਜੀਤ ਹੈਗੇ ਜੋਬਨਜੀਤ ਆਰਓ ਵਿਲੇਜ ਭਾਈ ਲਾਡੂ ਪੀਐਸ ਸਦਰ ਪੱਟੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਬਨਜੀਤ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਲਸੀਆਂ ਕਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿਲੇਜ ਭਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਐਸਐਸਓਸੀ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੀਡਸ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਅਕਿਊਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब पुलिस ने पीछे जो बलटोहा सरपंच बलटोहा विलेज के एक्स सरपंच जरमल सिंह के मर्डर को सॉल्व कर लिया है और इसमें 7 गिरफ्तारियां की जो मेन अक्यूज थे जो असिडेंट्स थे उनको छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ सेंट्रल एजेंसी के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में रायपुर छत्तीसगढ़ से उसके साथ सपोर्ट और लॉजिस्टिकल मॉड्यूल में जोबनजीत सिंह दोनों के नाम जोबनजीत सिंह उन्हें एसएसओसी मोहाली की टीम ने काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने उन्हें अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेशन की टीम को आगे बढ़ाते हुए आज सुबह तरनतारन में पुलिस ने कुलविंदर सिंह उर्फ किंदा ये आरो विलेज कंसिया कला अरमानदीप सिंह और हरप्रीत सिंह
पार्टियां, पंजाब की पुलिस पार्टियां बिहार में, पटना में गई, नांदेड़ में गई। उसके बाद असेलेंट्स को ट्रैक किया गया रायपुर, छत्तीसगढ़, और लोकल पुलिस की मदद से, सेंट्रल एजेंसीज की मदद से इन्हें लोकेट किया गया और इन्हें कल रायपुर में गिरफ्तार करके जो ये दो असेलेंट्स थे, सुखराज और करमजीत, तो इन्हें लोकल कोर्ट में पेश करके इनका 14 तारीख तक ट्रांजिट रिमांड देके इन्हें बाई एयर पंजाब ले आया जा रहा है। और दो सपोर्ट मॉड्यूल के जो दो जौवनजीत थे, इन्हें मोहाली SSOC में गिरफ्तार किया। और आज सुबह जैसा कि मैंने बताया कि 3 अक्यूज ये तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में गिरफ्तार हुए जिन्होंने शेल्टर प्रोवाइड किया था। तो ये सारा जो मर्डर था इसको बाहर बैठे हुए ऑपरेटिव्स ने अंजाम दिया। डिफरेंट मॉड्यूल्स थे, असिलेंट मॉड्यूल अलग था, सपोर्ट मॉड्यूल अलग था, लॉजिस्टिकल मॉड्यूल अलग था, और इसको डिफरेंट लोग अंजाम देते थे। फंडिंग भी इनकी बाई देवर ऑन द रन, उस वक्त भी फंडिंग करी गई, वेपन्स प्रोवाइड किए गए, व्हीकल्स प्रोवाइड किए गए। तो एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल ऑपरेशन था जो पंजाब पुलिस ने जो अनरेवल किया और इस केस को सक्सेसफुली इस केस को वर्कआउट किया। तो मैं साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी की 0 टॉलरेंस पॉलिसी सरदार वल्लभ भाई की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो जिस तरह से युद्ध नशे विरुद्ध एक कैंपेन लॉन्च हुआ है, तो पंजाब सरकार ने बहुत जल्द अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ कैंपेन लॉन्च होगा, जिसमें फोकस ये होगा कि जो ये लोग बाहर बैठे हैं उन्हें बाहर से लीगल मेथड से उनको लेके आया जाएगा, एक्स्ट्राडिशन या उनकी डिपोर्टेशन कराई जाएगी। जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, इस क्राइम को हम एक एंड टू एंड मैनर में जो पूरा इकोसिस्टम है क्राइम का, उसे आइडेंटिफाई करके उसे बस्ट किया जाएगा। कोई भी इस क्रिमिनल एंटरप्राइज में जो इन्वॉल्व है उसे बख्शा नहीं जाएगा 0 टॉलरेंस पॉलिसी के अंतर्गत। और साथ ही साथ में मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर पंजाब में कोई क्राइम करेगा, गोली चलाएगा, तो पंजाब पुलिस उसका पीछा देश के कोने कोने में जो लोग भारत से बाहर भी बैठे हैं उन्हें भी जो दे विल हैव टू अकाउंट फॉर लीगल लॉ विल कैच अप। पंजाब पुलिस इज फुली डिटरमाइंड टू फाइट दिस मेनेस ऑफ पंजाब। हाले इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर एक ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭ ਨਾਸੂਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ। सवाल ये उठता है कि अमृतसर से रायपुर में चले पूरी कोई स्टेक ग्रुप रहा होगा, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे ऐसे क्राइम हुए जो अब तक तो पूरी ऐसे स्टेक ग्रुप है जो पंजाब से आसानी से मर्डर करने के बाद चले जा रहे हैं। ये ट्रेंड हमने देखा है। ये आपकी बात सही है कि जो इंटर स्टेट जो क्रिमिनल नेटवर्क है उसकी वजह से दूसरे स्टेट्स में शेल्टर मिल जाता है, और ये मतलब ये कह रहे हैं ये इसका फायदा उठाते हैं। पर इसको काउंटर करने के लिए हमने बड़े इफेक्टिव तरीके से दूसरी स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन किया है। और उस केस में भी बताना चाहूंगा कि अगर आपको दोबारा चाहे कराने का मौका नहीं मिलेगा तो बहुत जल्द जो मोहाली मर्डर केस है वो भी हम क्रैक कर देंगे। हमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मिले, तो हमारा कोई भी केस अनसॉल्व नहीं है। अगर आप देखेंगे पिछले साल जो भी हमारे क्राइम्स हुए हैं हमने 100% सारे केसेस सॉल्व। लगातार पोस्ट आ जाती है, कितनी सही है या फेक डालते हैं, क्या? देखिए कई बार सही भी होती है, कई बार एक्सैजरेटेड होती है, कई बार एब्सोल्युटली फेक। जैसे स्पेशली जो हमने ग्रेनेड वाले पक्षों में देखा है कि इंसिडेंट नहीं होता है, तो ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। अब जैसे 4-5 लोग क्लेम कर देते हैं, इन्वेस्टिगेशन में फिर पता लगता है कि सभी का रोल नहीं, कुछ लोगों का रोल होता है, कुछ का नहीं रोल होता है, तो वो एज अ ग्रुप क्लेम करते हैं। तो इसकी कोई बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी नहीं है सोशल मीडिया की। सर, there's a breach of privilege on you. आपको उसके ऊपर क्या कहना है, स्पेशली जो AI के ऊपर आज सुनील ठाकर ने भी कहा है कि CM का भी एक वीडियो है, उसका कोई ऑथेंटिफिकेशन हुआ है। तीसरा सवाल है जो आप लोगों ने एक FIR किया है जिसमें सुखपाल खेड़ा, सुधीर बादल और बाकी लोगों को लिंक किया है, क्या बेसिस है उसका और क्या ऑथेंटिकेशन शेयर करेंगे जो आपके SES मोहाली में आप लोगों ने किया था उसको? Ma'am, I cannot comment on ongoing matters, so I will not offer any comment.
डीजीपी साहब ने सर अपना बता दी, जैसे सुनील जाखड़ ने ट्वीट किया है जो वीडियो की फोरेंसिक जांच हो, इस पे आपको चिट्ठी लिखी है, शिकायत दी है, उस पे क्या है? नहीं, मुझे अभी तक कोई चिट्ठी नहीं मिली। अगर चिट्ठी आएगी तो उसको मैं जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो हमारे यहाँ वर्क एज पर लॉ क्लियरली कट आउट है, तो डीजीपी का मेन रोल पॉलिसी मेकिंग में होता है। जैसे क्राइम की कहने डे टू डे, इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट करी अपने कमिश्नर साहब को, इन्हें अमृतसर से बुलाया कि अगर सप्लीमेंट्रीज हैं, आपने कोई डिटेल्स पूछ ली तो कंसर्न हमारे जो एसएसपी हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, तो एक उनका जो वर्किंग है, वो सभी चीजें मेरे संज्ञान में नहीं होती, और सभी इस लेवल के स्टेट लेवल पे बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उस पर डिसीजन लिया जाता है। सर अपोजिशन एलिगेशन लगाता है कि पंजाब पुलिस पॉलिटिकल That's all for now. Stay tuned to the Savera for more updates. Do like, comment and subscribe to the channel.